changes everything. Knowledge is like climbing a mountain. Uh, It's like climbing a mountain. The higher you reach, the more you can see and appreciate unknown. Education is the single most indispensable asset a person possesses. The importance of education cannot be uh, un- undermined. Once acquired, it cannot be taken away. It is the brightest. It is the birthright of every human being to have access to education. If a person was unfortunate and did not get access to education in the early years, she or he can start education anytime. There is no age limit and time barrier to education. Education helps to develop positive and healthy environment, and only through education the world can be changed. The best thing in network marketing is the continuous education a networker gets through different people at various levels. Education coupled with proper hands-on training is the key to success in our industry. The story of Sultan Alawi. I'm happy to share a story of Sultan Alawi, a young man from Oman, and his quest for knowledge. He used to drive every weekend from Muscat to Al Ain, 370 kilometers, to learn about network marketing. When he joined, he was a fresh graduate from Sultan Qaboos University and did not know anything about network marketing. It took him only 1 year to gain knowledge and apply it on the field and become one of the fastest diamonds in Gulf. Today, he is one of the most successful leaders in the company, travels around the world, and trains, coaches people in the network marketing industry. My initial education, I was fortunate that my first training about network marketing was given by Dr. Lim Swan Jin, founder and CEO of one of the fastest growing network company in the world. I asked him, how can one be successful in the network marketing business? And he answered that one needs to do three things. One, cultivate the right mindset. Don't look left and right. Get laser focused. Number two, be a product of the product. So you can share the benefit with others directly from your heart. Number three, teach other people what you know and don't look at your check for at least 3 years. So those valuable tips are still applicable and can be followed by the new networkers. When I first joined the network marketing industry, I used to live in Al Ain, 150 kilometers from Dubai. So whenever any international trainers of the company came to train us, I volunteered to be their chauffeur and drive them all over UAE. My attraction was to spend few hours of private time where I could get all my questions answered and my queries clarified. It was difficult to drive and write notes. So I recorded them and listened time and again to master the product. I'm thankful to Professor Basupal, Dr. Ratna, Dr. Ranjan, Dr. Malathi Ramani, and Mr. Ramani for their time they gave me to reach where I'm today. I learned about network marketing from Networking Times webinars. The three powerful words by Chris Gross: education changes everything. Instantly got me hooked to the new education. I made sure I attended all the webinars, even if they were at 5 a.m. It is here that I came across MLM gurus like Hilton Johnson, Tom Schreiter. Chester, Schreiter. Schreiter, Tom Schreiter, Mark Yonel, and Michael Oliver. Michael Oliver. Michael, it is okay. Michael Oliver and many others. All webinars were 1 hour, but the material was worth hundreds of hours. I even joined MLM University and studied 1 year business coaching program. The single greatest thing to learn in network marketing is knowing what to say at just the right time. Hilton Johnson. Why network marketing MLM is being tabooed by people. Most people join. एक मिनट हुआ. Now let's before we go ahead, जी इसको समझ लें कि इन 3-4 पैराग्राफ्स में क्या है. जी I think Mujahid, if you can share whatever this is something like mutual experiences of Sultan Alawi and Fatmi Bhai. So basically education की importance और
उसका ये हमारी तब्दीली से क्या ताल्लुक है और हमारी कामयाबी से क्या ताल्लुक है, उसका उन्होंने बहुत तफसीली जायजा इसमें लिया है। पहली बात तो ये कि कोई भी चीज अपना बदल रखती है अलावा तालीम के। तालीम का कोई बदल नहीं हो सकता, ना ही कोई शॉर्टकट हो सकता है। सक्सेस नेवर कम्स ड्यूरिंग द स्मॉल होल्स, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। एजुकेशन को शॉर्टकट्स में लेने के बजाय उसको उसकी डेप्थ में सीखना और उसको प्रैक्टिस करना ही की है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स अनफॉर्चुनेट है कि एक्सेस नहीं हो रहा उसका, तालीम से उसका नाता नहीं जुड़ रहा उनके अगले सालों में, तो वो किसी भी वक्त एजुकेशन को सीख सकता है। उसके लिए कोई उम्र नहीं है। माँ के पेट से लेके और कब्र तक इल्म हासिल करने का हुक्म है। इकरा का लफ्ज़ ही हमें इस बात बताता है कि सबसे बड़ी चीज़ पढ़ना थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़, कुरान का पहला लफ्ज़ हम तक पहुँचाया वो था इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ना, तालीम हासिल करना। अब उसमें तमाम तालीम आ जाती है, दुनियावी सब कुछ। लेकिन बेस्ट थिंग हमारे जो एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म की है, उसमें पूरी शख्सियत की एजुकेशन है। पर्सनल ग्रूमिंग से लेके हमारी जनरल नॉलेज, हमारी प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि हमें कहीं न कहीं बॉडी फिजियोलॉजी से कोरिलेशन बता देती है, जिसकी वजह से हम कुछ लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं फ़ौरन ही। और दूसरी बात ये कि हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट टू स्पेंड आवर लाइफ हमें मिल जाता है। यानी फ़ोकस होना और लेज़र फ़ोकस होने के साथ-साथ कंसंट्रेशन और किससे क्या हासिल करना है और कहाँ उसे यूज़ करना है। एजुकेशन लेना और एजुकेशन के लिए किसी हद तक जाना कोई लोगों के लिए कभी मुश्किल है, कभी नामुमकिन है, लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा ही उसी वक़्त है जब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। अगर मैंने लिखना सीख लिया और मैंने लिखा नहीं, तो कुछ दिन बाद मैं भूल जाऊँगी ना। तो और ये इंसान की फितरत है, निस्यान तो लगा हुआ है ना उसके साथ। तो पहली चीज़ जो हमारे सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि सीएमई, जैसे हमारे यहाँ होता है कंटीन्यूअस मैजिकल एजुकेशन, इसी तरह कंटीन्यूअस नेटवर्क मार्केट एजुकेशन एक लफ्ज़ है जो हमें ऑल आवर लाइफ वी हैव टू कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम गुरुज़, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम सेमिनार्स, फ्रॉम इवेंट्स, और हर दफ़ा हम कुछ नया सीख के आते हैं। तो एजुकेशन जब आप प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो तभी सक्सेसफुल होती है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, किसी भी चीज़ में नॉलेज के बगैर कोई बात नहीं बनती। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हम 1 मिनट में किसी के मुँह से सुन के अपना मार्केटिंग एक्सेस नहीं हासिल कर सकते। हमें खुद उसमें उतरना पड़ेगा ना। तैरने के लिए हमें पानी में जाना पड़ेगा, और जब तक हम जाएँगे नहीं, भले डूबें, तैर जाएँ, सीखेंगे उसी वक़्त जब तक हम खुद कोशिश करेंगे। और फिर ऐसी कोशिशों में जो स्टोरीज़ हमारे सामने हैं, बहुत हैं। अब तो लातादाद हैं। मुजाहिद की खुद की स्टोरी हमारे सामने, फ़ातिमा की स्टोरी है, फिर सुल्तान अलावी जो कि ओमान से हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट और रिनाउंड सक्सेसफुल शख्सियत के से मैंने उनको देखा है। और यानी इनके बारे में एक मुझे पता नहीं वल्लाह मैं सच बता रही हूँ, मुजाहिद मुझे करेक्ट करें, कि जब इन्होंने एमबीए किया तो इनके फादर ने इनको घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा बस अब नो मोर, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। हालाँकि वो अच्छी वेल ऑफ फैमिली हैं, और उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, और इनको अरसे तक जॉब ना मिली। फिर किसी तरह से ये जब इंट्रोडक्शन इनका हुआ रिएक्शन से, तो सिर्फ़ टूथपेस्ट लेके ये गाँव में जाके और इन्होंने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देके उससे अपना बिज़नेस एम्पायर खड़ा किया। अब यानी वो सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, बिल्कुल यू टर्न लेने के बाद, आज वो गल्फ का एक रिनाउंड ट्रेनर है, और बड़ी कम उम्र में उसने सक्सेस हासिल की। तो उसका जो तरीक़ा अमल था मार्केटिंग में, वो बहुत सारे अरबियों के लिए तो वो मशहूर है कि वो अरबी में ट्रेनिंग देता है। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम थी कि हम उसकी सिर्फ इंग्लिश ही कहीं-कहीं, कभी-कभी सुन सके। लेकिन मेरा ख़्याल है मुजाहिद का एक्सपीरियंस है, उनके साथ है मुजाहिद, आप क्या कहते हो सुल्तान के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी बहन-भाइयों ने अभी हमें जॉइन किया है। आज लर्निंग के हवाले से हम लोग कुछ जो बिज़नेस टेस्टिमोनियल बोलें, जो भी स्टोरीज़ हैं, अता भाई ने भी हमको ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं। हमने एक छोटा-सा पैराग्राफ को हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। इसमें 2-3 बातें जो मुझे समझ में आईं, या जो अक्सर हम अपने ट्रेनिंग्स में इस टॉपिक को सबसे पहले फ़हरिस्त में शामिल करते हैं, कि जितने भी डीएक्सएन के सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी स्टोरीज़ को सुनते हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको दिखेगी, तो आपको सबसे टॉप में जो उनकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी नज़र आएगी ना,
वो आपको उसकी सीखने की जो हंगर है आपको वो मिलेगी। मेरी खुशकिस्मती समझे कि ये जितने लोगों की भी स्टोरीज इस बुक के अंदर है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोगों को मैं ऑलरेडी जानता हूँ या मिला हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो मेरे सामने की ही चीजें हैं। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने और गनी साहब ने खुद मेरे ख्याल में उस बंदे का जिक्र किया था, विष्णु अधिकारी। तो बड़ा एग्जैक्टली। यंग सा लड़का, बड़ा हम्म। यंग सा लड़का हमारे सामने का, और बिल्कुल गनी साहब की ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग तो माशाल्लाह जो उसकी दौड़ भाग, उसका देखना, उसका उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट जो हमने देखा, तो देखें उसी उसी की वो भाग दौड़ मेहनत से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। अच्छा, वो जो विष्णु अधिकारी शायद लास्ट टाइम पे गनी साहब नहीं बोल सके, तो वो एक पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल भरने वाला लड़का, जो आप जाते हैं ना किसी पेट्रोल स्टेशन पे, हम्म। आपकी गाड़ी का वो कवर ओपन करके फिर आपसे खिड़की है ना खुलवा के आपसे पूछे कितने का पेट्रोल, फिर शीशा भी आपको साफ करके दे दे, तो वो बंदा जो सा है वो पेट्रोल स्टेशन से उठता है और डालता तो वो लोगों की गाड़ी में पेट्रोल है, लेकिन उसके अंदर अपना जो हंगर था, अपना जो उसका वो पेट्रोल था, जो उसके अंदर उसकी सीखने की जो आग उसके अंदर जो जली हुई थी। तो सेम चीज हमें सुल्तान अलवी साहब के अंदर भी हमें नजर आई। यंग सा लड़का, ग्रेजुएशन की, बाप उसको बोल रहा था कोई नौकरी, तो वो बोलता है नहीं मैं कोई बिजनेस करूंगा। फिर उसमें वो डीएक्सएन को जब चुनता है तो फिर बाप को पता चलता है, और हर जगह पे वो रिवायती वही चीज है कि आपको किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है और आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखें जी, होता भी यही है कि जब हम लोगों को घर में अपने यार दोस्तों को बोलते हैं कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर वो आपसे मोहब्बत करते या रखते भी हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि भाई आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और आपने अभी जो फ्रेश ग्रेजुएशन की है तो उसका तुम क्या करोगे। लेकिन फिर वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास होती नहीं है कि भाई नेटवर्क बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएन हमारा तो पूरा एक सिलसिला है कि आप इसमें जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप इसकी जो सीखने की जो दो पार्ट हैं, सीखने का जो इसके चक्की है, पहले आप उसमें पिसते हैं, आपका फाइन पाउडर बनता है, देन आप जाके जनाब है ना आपका एक शक्ल दुनिया के सामने आती है। तो सुल्तान अलवी साहब की स्टोरी बहुत टचिंग है, जैसे फिर उन्होंने खुद को डेवलप किया पर्सनैलिटी वाइज, ना सिर्फ अपने एरिया के लोगों के लिए, बल्कि आज आप देखें ना पूरे अरब कॉम्स, यानी कि अगर इराक होता है, सऊदी अरब, जितने भी गल्फ स्टेट, इसके बाहर भी जितनी भी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, तो उसमें अगर सुल्तान अलवी का नाम ना हो तो समझें कि वो ट्रेनिंग यानी कि वो हो नहीं पाती। तो अब वो एक पिलर के तौर पर जो सा है। अच्छा, मैं इसमें अपनी भी एक छोटी सी स्टोरी को मैं ऐड करूंगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, या अपनी तारीफ इंसान है ना नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं अगर मैं खुद को बोलता हूँ कि आज डीएक्सएन या आप लोगों के सामने अगर मैं हूँ, एक छोटी सी अल्लाह ताला ने एक इज्जत और मान रखा हुआ है, तो शायद उसमें मेरी जो एक क्वालिटी थी वो ये थी कि सीखने के लिए अब मैं आप ये स्टोरीज जो सी है ना, शायद इस टाइम पे गनी साहब भी होते तो वो मुझे वाकई ही इस टाइम पे आप लोगों को बताते कि हाँ मैंने मुजाहिद के अंदर इस चीज को वाकई ही देखा है। तो जब मैंने गनी साहब को देखकर और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखकर जब मैंने सीखना शुरू कर दिया, और अच्छा फिर इसमें क्लासेस होती थी गनी साहब की, हर वेडनेसडे एक क्लास होती थी, 8 बजे स्टार्ट होती थी डीएक्सएन अलाइन में। आज तो गनी साहब हमारे साथ ऐसे जैसे लाइव होते हैं, तो उस टाइम पे 8 बजे की गनी साहब की एक फिजिकल क्लास रहती थी जिसमें ये सब चीजें वो हमें सिखाते थे। अच्छा, अब मेरे लिए क्या मुश्किल थी, मेरी ड्यूटी रहती थी, जैसे मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा था, मैं अलाइन में रहता था, लेकिन उसी दिन मेरी ड्यूटी होती थी जो कि खत्म होती थी 5 या 6 बजे करके। और फिर अगर आप अबू धाबी में हैं और आपको अलाइन पहुंचना है तो कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए होते थे। तो मैं जनाब उधर अपनी ड्यूटी खत्म करके और फिर वहां से मुझे रश में निकलना, फिर 8 बजे मुझे क्लास एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना मेरे लिए बड़ी दुश्वारी थी। तो फिर एक दिन मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैंने गनी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा गनी साहब मैं आपकी क्लास के लिए मैं अबू धाबी से बड़ी स्पीड से निकलता हूँ, यानी कि मेरी गाड़ी जनाब इतनी कोई सुपर कार नहीं है, मामूली सी गाड़ी है, उसके ऊपर मैं स्पीडें लगा के मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंच नहीं पाता। अक्सर मुझसे आपकी ये जो 15 या पहले जो 10-15 मिनट की जो क्लास होती है ना सर, ये मिस हो जाती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सर अगर आप इसको थोड़ा सा लेट कर लें, यानी 8:15 पे शुरू करें, 8:30 पे, तो आप यकीन करें मुझे गनी साहब के आज भी अल्फाज याद है, मुझे उन्होंने मुझे बोला कि मुजाहिद अगर तुम्हें सीखना है ना तो तुम्हें 8 बजे पहुंचना होगा, और मैं टाइम नहीं चेंज करूंगा। वो मुझे बात अभी भी याद है। तो फिर मैं क्या करता था, अपने उस दिन की जितनी भी मसरूफियात, फिर उसमें जनाब जो मेरी दौड़ें, जो मेरी भागें, और मुझे जल्दी रहती थी कि मुझे कैसे पर लग जाएं और मैं अलाइन पहुंचूं, और जो आज का 8 बजे का सेशन है उसको मैं सेकंड बाय सेकंड जो सा है
उसको जज़ब कर सकूं, उसकी एक-एक चीज़ को मालूम करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि गनी साहब फिर उन चीज़ों को उन्होंने बाद में रिवाइज़ भी किया, फिर मुझे सीखने को या दोबारा सुनने को मिला, बुक की शक्ल में मुझे मिला। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि उस टाइम का वो सीखना, उसके लिए पहुँचना आज भी मुझे ऐसे याद है कि जैसे एक इंसान प्यासा हो और उसे पता हो कि वहाँ पे आपकी आपकी प्यास को तस्कीन के लिए, बुझाने के लिए वहाँ पे एक कटोरा पानी रखा हुआ है और आपने उसको जनाब इतने बजे जाके हासिल करना है। तो सीखना हमारे इस बिज़नेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सबसे हाई लेवल का वो है। अच्छा, फिर जब मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा था कि इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें आप पिसते हैं तो आपका जौन-सा होता है ना वो आपका अर्क निकलता है। तो वो क्या चीज़ है, सीखने के साथ-साथ अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो है इसकी प्रैक्टिस करना। आप जो सीख रहे हैं, आपने इन्विटेशन सीखा, भाई आप उसको प्रैक्टिस तो अब करें ना। आपने प्रेज़ेंटेशन सीखी, अब आप प्रेज़ेंटेशन किसी को तो दोगे ना। आप प्रोस्पेक्टिंग जो कर रहे हैं, तो फिज़िकली जाकर किसी से आप बात करोगे, प्रैक्टिकल होगा तो आप बनते जाओगे ना। तो अच्छा, फिर एक आखिरी चीज़ इसमें मैं ऐड करूँ कि मैंने और गनी साहब ने खुद पर्सनली ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग, मुझे आज भी एक ट्रेनिंग याद है दुबई की जो मैं अक्सर रिपीट करता रहता हूँ अपने सेशंस के अंदर, कि काफ़ी महँगी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे जो मेरी इनकम थी, मेरी उस ट्रेनिंग सेशन का जो फ़ीस थी वो मेरी 1 महीने की तनख्वाह थी। ठीक है, डॉलर्स में, फिर डॉलर से उसको दिरहम में आप कन्वर्ट करें, तो लोगों की 2 महीने तनख्वाह थी, मेरी 1 मंथ की तनख्वाह थी। मुझे ये लगा मुझे मालूम हुआ कि गनी साहब जा रहे हैं। अच्छा, वो डीएक्सएन की ट्रेनिंग नहीं थी, वो बाहर के जो लीडर्स, ट्रेनर जो अभी आप लोग नाम अभी जो बोल रहे थे ना, वो माइकल ऑलिवर, उसमें मुझे शायद एक नाम याद है। तो उस सेशन में जब मुझे पता चला कि डीएक्सएन से सिर्फ गनी साहब जा रहे हैं क्योंकि उनको सीखने का शौक है, तो मैंने कहा अब ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, और ये तो जनाब लाज़मी। तो मैंने भी उसमें एडमिशन लिया और गनी साहब को पता चला क्योंकि हम 2 लोग ही अलायंस से जा रहे थे, तो गनी साहब ने मुझे बताया। मैंने गनी साहब को बोला, मैं कहा सर आप जा रहे हैं तो मैं आपको जॉइन कर लेता हूँ। गनी साहब ने बोला यस मुझे तो जाना है। तो मैंने कहा सर मैं आपका ड्राइवर बन जाऊँगा और आप आराम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिर एक 2 घंटे का सफ़र, 2 घंटा यहाँ से गुरु के साथ जाना, 2 घंटा वहाँ से गुरु के साथ वापस आना, ये 4 घंटे तो मुझे बोनस में मिल गए क्योंकि रास्ते में मैं और गनी साहब रोड के ऊपर, और जनाब एक मेरा ज़िंदगी का एक बड़ा क्या बोलते हैं, एक सीखने वाला एक सफ़र, एक मेमोरी, वो तो अलग बात है। अच्छा, उस सेशन में पहुँच के अब सारे बड़े-बड़े वो जो गुरु आए हुए, लीडर्स आए हुए हैं जो कि इस इंडस्ट्री में, जिसको 40 साल है, किसी का 35 साल का एक्सपीरियंस है। अब वहाँ पे तो वो जनाब जो लेवल की जो इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो तो हमारे सर के ऊपर से गुज़र रही थी। लेकिन उस एनवायरनमेंट में बैठ के जो मुझे लगा कि भाई क्या-क्या सीखा जा सकता है। अब उस दिन के टॉपिक का सिर्फ एक लफ्ज़ ने मेरी एंटायर लाइफ़ को चेंज किया। कभी किसी दिन कोई ट्रेनिंग होती, तो उसमें मैं आपको वो उस एक लफ्ज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि फिर मुझे लगा कि वो जो पेमेंट मैंने की थी ना, तो शायद वो लफ्ज़, उस एक लफ्ज़ को सीखने के लिए तो मुझे ऊपर वाले ने वहाँ पे भेजा, वो लफ्ज़ मुझे वहाँ से मिला और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस लफ्ज़ की वज़ह से मैंने डीएक्सएन से अपनी ज़िंदगी में कितने मिलियंस टाइम मैंने उस एक लफ्ज़ से कमा लिया। यकीन करें, एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का एक वो आप मौज़ा कह सकते हैं, करामत कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं। तो सीखना जी, इस टॉपिक के अंदर जितनी भी आपको स्टोरीज़, मेरी स्टोरी, गनी साहब की स्टोरीज़, या इंशाल्लाह आज आप हमें सुन रहे हैं, तो ये आप लोगों की स्टोरीज़ जो-सी है ना, ये सीखने से ही बनेगी। और जो इंसान नेटवर्क बिज़नेस में सीखने के लिए सर तस्लीम ख़म नहीं करेगा, तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसे पौधे तूफ़ान को नहीं बर्दाश्त कर पाते जो उसमें झुक नहीं सकते। तो सीखने के लिए झुकना पड़ेगा, सीखने को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तो तब आप जाके जनाब अपनी जौन-सी मज़ीद सलाहियतें हैं, वो आपकी उभर के सामने आएँगी। तो फिर इसमें अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जी, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अता, वेलकम। जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? आवाज़ नहीं आ रही था, अनम्यूट करो। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता, हमने थोड़ा सा डेढ़ सफ़ा पढ़ा है और ये टेस्टिमोनियल्स के बाद, फातिमा भाई के एक्सपीरियंस के बाद जो है वो, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इज बीइंग टैबूड बाय पीपल, यानी उसकी जो तवाहमात है एमएलएम के बारे में, वो वहाँ से शुरू करना है। जी, 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 जी। जी ये बाज़ लोग नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एमएलएम को फ्रॉड क्यों कहते हैं? यहाँ से स्टार्ट करना है। जी जी जी, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम।
जी, यहाँ पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को या एमएलएम को फ्रॉड क्यों कहते हैं? अक्सर लोग कारोबार में शरीक होते हैं तो प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान की मुनासिब मालूमात लिए बगैर और तफसील जाने बगैर सीधे फील्ड में चले जाते हैं। इस सिलसिले में बेहतरीन मिसाल जो मैं अपने फ़ज़ाई इंजीनियरिंग के तजर्बे से हासिल की दे सकता हूँ। वो एक ऐसे पुरजोश शख्स की सी है जो बगैर किसी परवाज़ी असबाब और उस्ताद के तैयारा उड़ाना चाहता हो। यानी अपनी जो उसकी फ्लाइंग लेसन्स होते हैं उसके और टीचर की ट्रेनिंग के बगैर कोई बंदा जो है वो तैयारा उड़ाना चाहता हो, उसकी मिसाल जो है वो देना चाहते हैं। उसका अंजाम क्या होगा? अगर उसने कुतुब से या रेडियो गेम से चंद बातें सीख ली हों, वो उसकी परवाज़ तो भर सकता है, लेकिन उसकी धमाका खैज़ तबाही यकीनी होगी। ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो रहा है। लोग ज्वाइन करते हैं और 1 साल में इंडस्ट्री को फ्रॉड करार देते हुए सिस्टम में खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के तजर्बे में सिर्फ चंद अफराद को देखता हूं जो खुद को तालीम याफ्ता बनाने के लिए वक्त और पैसा सर्फ करते हैं। यह हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पढ़ाई शुरू करे, अपने जाती कोच का इंतखाब करे, नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह सीखे जैसे एमबीए या एमडी की डिग्री के लिए तालीम हासिल की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई का बेहतरीन हिस्सा यह है कि आप सीखने के साथ साथ इस पर 100% अमल पैरा भी हों। यूं तालीम के साथ साथ पैसा कमाना भी शुरू कर देंगे और एक बार अगर आपने कारोबार में महारत हासिल कर ली तो आप एक डॉक्टर या इंजीनियर के बराबर या उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार में सबकत ले जाने के लिए किन तालीमात की जरूरत होती है? नेटवर्क मार्केटिंग के कारोबार की तालीम में मजीद इजाफा के लिए आपको मंदरजा ज़ैल उमूर पर अबूर हासिल कर होना चाहिए। नंबर 1, आपकी कंपनी की मसनूआत और बोनस प्लान। जब आप बोनस प्लान को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम अपना जो बोनस है वो किस तरह से ज्यादा ले सकते हैं, किस तरह से हम उसको अपनी टीमों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी डेप्थ को और विड्थ को देख सकते हैं। इसी तरह आपको प्रोडक्ट का नॉलेज जब कंप्लीट होगा तो आप उसकी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का मैकेनिज्म, प्रोडक्ट का जो है रिफ्लेक्शंस वो बता सकते हैं। नंबर 2, आपकी इनफरादी नशो और तरक्की, खबर रसाई और लीडरशिप की महारतें। यानी आपको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, लीडरशिप की महारतें और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, ये चीजें जो है आजाद जरूरी हैं। नंबर 3, इंसानी ताल्लुकात और कस्टमर सर्विस, हाउ टू सर्व द कस्टमर, और किस तरीके से हमने इंसानों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं, उन तक पहुंचना है। रिजल्ट क्या निकला हमारा? नतीजा ये निकला कि अगर आप दुनिया भर का इल्म रखते हो मगर लोग ये जानना पसंद करेंगे कि आपका इल्म उनकी कैसे मदद करेगा। एक बार अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की मुकम्मल तालीम हासिल कर ली, इसे दूसरों से शेयर किया और ये तालीम इनके सुपुर्द कर दी ताकि वो भी कामयाब हो जाएं। जैसा कि मशहूर कहावत है, लोग उस बात की परवाह नहीं करते कि आपके पास कितना इल्म है। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आपके पास कितना इल्म है जब तक वो ये ना जान लें कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। यानी आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, आपकी तालीम से, आपके तजुर्बे से और आपके हुनर से अगर दूसरे लोगों को फायदा नहीं पहुंचता, दूसरे लोग मुस्तफीद नहीं होते हैं, तब तक आपके इल्म की और आपके हुनर की कदर नहीं होती है, लोग उसको तस्लीम नहीं करते हैं। हमारी मश्क में सवाल आते हैं। सवाल नंबर 1 है, नेटवर्क मार्केटिंग की तालीम में प्रोफेशनल तालीम का कोई तर्ज अमल है? प्रोफेशनल तालीम तो प्रोफेशनल एजुकेशन, बेशक कोई शक नहीं है कि जब तक आप प्रोफेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की तालीम में क्या मतलूब होता है? नेटवर्क मार्केटिंग की तालीम में मतलूब यही होता है कि आपने तालीम सीखी, उस पर अमल किया और फिर उसके बाद आपने उसको आगे जो है वो डेवलप किया। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को सिखाने के लिए कितना खर्च किया, ये डिपेंड करता है हम पे कि हम देखें कि कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पे और नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अफराद की महारतें। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नीड्स इज हाफ द जॉब ऑफ मीटिंग देम। स्टेनवेंसन जेआर। इंसानी जरूरियात को समझना उनसे निस्फ मुलाकात के मुतरादिफ है। यानी अगर आप इंसानी जरूरतों को समझ जाएं तो समझ लें कि आपने आधी जो है मुलाकात या आधे लोगों के मसले तक आप पहुंच गए हैं। इस दुनिया की खूबसूरती इंसानों के गिर्द घूमती है। यहाँ हर किस्म के लोग खुशबाश, मददगार और पुरजोश और परवाह करने वाले, पुर उम्मीद और खुश दिल मौजूद हैं। अफराद की जिंदगी और उनकी शख्सियत पर हजारों कुतुब लिखी गई हैं। लोग बहुत ज्यादा ज़हनी उलझाव और पेचीदगियों का शिकार हैं। दुनिया की 7 बिलियन आबादी में से कोई एक शख्स भी दूसरे की मिसल नहीं है। वो अपने ख्यालात, सोचों, मजाजों, यकीन, एहसासात, एतबार और तसव्वुरात में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम अफराद को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कारोबार और जिंदगी में भी कामयाब हैं।
ये बड़ा अहम नुकता है कि अगर हम लोगों को समझने में का इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल। इन इंसानों को अगर हम समझ गए, लोगों को समझ गए, उनके अफकार को समझ गए, उनकी सोचों को समझ गए, तो समझ लें कि आपने उन तक अबूर हासिल कर लिया। किसी कारोबार की असल सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि काफी या कार, बल्कि लोग हैं। इसलिए अगर किसी कारोबार में असल प्रोडक्ट हैं तो हमें अफराद के मुताबिक ज्यादा सीखना, समझना और जानना चाहिए। यानी आपका प्रोडक्ट अगर लोग हैं तो यू शुड नो मोर एंड मोर अबाउट पीपल। तो फिर आपको लोगों के मतलब जो है वो सीखना, जानना, उन तक अप्रोच करना, इसकी सबसे ज्यादा शायद जरूरत होगी ताकि आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वेलकम टू आवर कोच, आवर मेंटोर मोहतरम सर फातिमा साहब। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फातिमा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। और कितना रहता है सर एक छोटा सा पैरा सर। ओके ओके, गो अहेड। जी सर, अगर आप अफराद के अहवाल को समझ सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में यकीनन कामयाब हो सकते हैं। और वो अफराद की जरूरत, ख्वाहिश, तलब और दुख दर्द हैं। अगर आप इनकी तकलीफ की असल वजह जान जाते हैं और उनकी इस तकलीफ को कम करने या खत्म करने का तरीका मुहैया कर सकते हैं तो आप यकीनन अफराद के कारोबार में हैं। अगर प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान एक जैसा है तो फिर हम चंद मुट्ठीवार अफराद को ही कामयाब क्यों देखते हैं? बहुत से अफराद को कामयाब कारोबार में तगो दो करते हुए देखते हैं। आखिर कामयाब नेटवर्क वर्कर दूसरों से क्या मुख्तलिफ कर रहे हैं कि वो कामयाब है? उन कामयाब अफराद ने अफराद की महारतों पर अबूर हासिल किया है। उन कामयाब अफराद ने अफराद की महारतों पर अबूर हासिल किया है। नेटवर्क मार्केटिंग अफराद का बिजनेस अफराद के जरिए अफराद के लिए होता है। यह कारोबार ये उन अफराद के लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। जब आप अफराद तक रसाई हासिल करते हैं, खासतौर पर उन अफराद तक जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो वो आपकी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी मसनूआत खरीदते हैं जो कि वो आप पे एतमाद करते हैं। वो आपकी वजह से प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये वो एतमाद है, ये वो ट्रस्ट है जो आपने कई बरसों की मेहनत के बाद बहाल किया है। अलबत्ता वो बाद में आपके बताए हुए मौजूद फवायद मिलने पर, यानी वो वादा जो आपने किया होता है कि ये फवायद मिलेंगे, तो जब वो मिलते हैं तो आप उस एतमाद के साथ उस ताल्लुक को मजबूत बनाते हुए प्रोडक्ट या सिस्टम को इख्तियार कर लेते हैं। रिजल्ट क्या निकला हमारा कि लोगों को जानने और समझने के लिए कई साल लग सकते हैं, हत्ता कि पूरी जिंदगी सर्फ हो सकती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कामयाबी अफराद पर मुनहसर है। अगर आप अफराद के मुतालिक सीखने में अपना वक्त और अपनी कोशिश सर्फ करने के लिए तैयार हैं तो आप बेइंतहा खुशी से लुत्फ अंदोज होंगे और आपको कारोबार में भी मुसर्रत मिलेगी। मैं कल का यहाँ पर लर्निंग की बात करने लगा हूँ। छोटा सा एक्सपीरियंस इजाजत से चाहूंगा। कल भावलपुर में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है, बहुत बड़ा सा जो हमारा था, एक प्रोग्राम था, स्पिनिंग सेरेमनी थी। तो वहां हमारे लीडर्स ने ट्रेनिंग्स की तो बार बार एक बात कर रहे थे कि डीएक्शन जिंदगियां बदल देता है। जो डीएक्शन में आता है उसकी लाइफ बदल जाती है। मैं डीएक्शन में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं डीएक्शन में आया, मुझे दुनिया में कामयाबियां मिल गई। तो जो डीएक्शन में आता है कामयाब हो जाता है। अब जब मेरे सेशन की बारी आई ना, तो मैंने उनसे कहा कि सॉरी, मैं यहां पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, मैं आपके जुमले को तब्दील करूंगा कि डीएक्शन में जो आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है या डीएक्शन जिंदगियां बदलता है। नो, मैं इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। इस बात पे, इस जुमले को, इस पर मैं एग्री नहीं हूं। तो सब लोग जो आए हुए थे, मोस्टली न्यू कमर लोग थे, तो वो हैरान हो गए, लीडर भी परेशान हो गए। मैंने फिर उनको बोला, देखें, डीएक्शन लाइफ नहीं बदलता, आप अपनी लाइफ खुद बदलते हैं और वो डीएक्शन के थ्रू बदलते हैं। डीएक्शन उसकी जिंदगी बदलता है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और फिर इसमें आके इसको सीखता है, लर्न करता है, इसके हुकूक पूरे करता है। तो याद रखें, जिस बंदे को भी ये बताया गया है ना कि आप सिस्टम में आ जाए, जिंदगी बदल देगा और उसके बाद आप अपने घरों में बैठ जाएंगे, वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको अलिफ से लेके ये तक, इसका पूरा जब तक नॉलेज लेके उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी डीएक्शन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा आप लोगों को ये ध्यान में बिठाना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न if you want to establish your business and if you want to make progress in the DXN system, you have to learn। और पूरा इल्म, नॉलेज प्रोडक्ट का भी, सिस्टम का भी और फिर साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ का भी। तो तमाम लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि सर ये बातें तो लोग बताते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम हमें सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी के साथ आज के इस टॉपिक को, कि तालीम बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो कभी भी इस सिस्टम के अंदर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो लिहाजा इसी नॉलेज को सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने कोच, अपने मेंटोर मोहतरम जनाब सर फातिमा गनी साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप लोग रिकॉर्डिंग कर रही हैं डॉक्टर? जी जी
जी जी रिकॉर्डिंग है। Yes, sir. Yes. इफ़त जी आपकी जी कर रही है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग? जी जी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके ओके। जिस बात पे अभी अता ने जो एंड किया है कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग के लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मिथ या लाइज, झूठ या ऐसी चीज जो आप आए और आप जो है ना एक मरतबा आपका बिजनेस जो है जो है ना ग्रो हो जाता है और उसके बाद फिर आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है। अगर किसी ने मेरे फेसबुक पेज में, मैंने कोई तकरीबन 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले एक मैंने टॉक दिया था, दिस इज द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब आप शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मसले हो जाते हैं। तो ये लोग जब चले जाते हैं, ये आपके डायमंड्स हैं। मिसाल के तौर पे आप हैं क्राउन डायमंड। क्राउन डायमंड का मतलब क्या मतलब है? 10 आपके डायमंड्स हैं, उनमें से अगर 4 आपके डायमंड्स चले गए, अगर मैं अता से पूछता हूँ या असमा से पूछता हूँ कितने लोग आपके जो बड़े एक्टिव थे वो आज एक्टिव नहीं है? तो ये हमारा बिजनेस इस क्यों हलाल है? ये नहीं है कि बस आपने बिल्डअप कर लिया और आपको रीबिल्ड नहीं करना। तो वो जो फनल है, दोबारा मैं कहूंगा, फनल में प्रॉस्पेक्ट का जो है ना कंटिन्यूसली आना जरूरी है। और यही एक स्कैम कंपनी या एक तरह का पिरामिड कंपनी और एक रियल कंपनी में फर्क है। तो एक तो ये है कि आपको कंटिन्यूसली काम करना है। अब वो काम जिस तरह लोग करते थे पहले, 8 घंटे 10 घंटे लगाकर उन्होंने अपना 6 का स्ट्रक्चर, ट्रिपल डायमंड बने, उसके बाद वो अपना क्राउन डायमंड बने। इवन मैं आपको बताऊं, क्राउन एम्बेसडर्स, आप लोग तो अभी यहाँ पे कोई भी क्राउन एम्बेसडर नहीं है, तो जब मेरी बात होती है क्राउन एम्बेसडर से, तो हम लोग पर्सनल बात करते हैं। और पर्सनल बात में क्या होती है, ये हम नहीं पूछते हैं कि आपको पैसा कितना मिल रहा है, क्योंकि ये तो टॉप सीक्रेट है। अच्छा, एक और चीज़ जो पाकिस्तान में, जब मैं लास्ट टाइम और उसके पहले जब गया, तो लोगों ने कहा कि ओ फातमी साहब, उनको तो करोड़ों में पैसा मिल रहा है। ये झूठ है। अब आप लोगों ने सुना भी होगा, $1 लाख मिल रहा है। तो आपका जो है ना, जो लोग कह रहे हैं ऐसी बातें जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, ये एक और झूठ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ना सारी बीमारियों के लिए है। ये प्रोडक्ट अभी DXN घाना में, कल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो ऐसी कोई बंदा जो है, उसको टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, वो तकरीबन साल से ऊपर वो इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को दे रहा है, और किडनी का भी है फेलियर, उससे वो उसको जो है ना फायदा मिला, और डायबिटीज और ये, तो वो सारी उसने डाल दी, सारे टेस्टिमोनियल्स डाल दी। देखें, बहुत सारी चीज़ें सच है, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से पब्लिक में जब डालते हैं ना, तो फिर ये कोई भी नहीं कहता कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ये आप गलत बयानी कर रहे हो। तो पर्सनल डेवलपमेंट जो आज का टॉपिक है, जो यहाँ की जो कंपनियां हैं ना, कोई मुझे कह सकता है या उसमें आप जाकर जैसे लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स खोलता हूँ। अभी दुनिया की जो, हम लोग अभी नंबर 1 2 3 4 5 में भी नहीं है DXN, नंबर 1 कंपनी कौन सी है? कौन सी? एमवे। एमवे। और एमवे का जो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। क्यों? देखें, जिस तरह भी पाकिस्तान में MLM के बारे में गलत सोच है ना, और सोच के अलावा बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आई, और बहुत अच्छी कंपनियां भी थी, जिसमें एमवे और बहुत सारी और भी कंपनियां थी, जिसमें एवॉन एवॉन जो है ना, वो उसने तो बिस्मिल्लाह किया था ये सारा कॉन्सेप्ट को। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो लोग थे ना, ये आप लोगों को जो है ना हिस्ट्री पढ़नी देखें, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे आप लोगों से सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी, अगेन गोइंग टू द थर्ड पार्टी। तो ये 1976 में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने एम्बे के ऊपर कोर्ट केस किया। जरा गौर से सुनिए, 76 ऑन द लोअर, जो भी कोर्ट था, वहां से कोर्ट केस चलते 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 इट वेंट इनटू द हाई कोर्ट।
और फाइनली जो है ना एमवे, ये जो स्कैम वाला जो था ना, क्योंकि उस वक्त तक कोई कानून नहीं था। देखिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कानून नहीं है। मेरी एक एसईसीपी आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे एक उनके ऑफिसर से बात करूं, उनको कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, और वो कह रहे थे कि स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, क्योंकि कोई इस किस्म का लॉ ही नहीं बना। अगर जिन लोगों ने मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाला वेबिनार अगर सुना, गौर से सुना, तो उसमें मैंने इसकी जो है ना जवाब में हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन इन अ प्रोफेशनल मैनर, उसमें मैंने एफडीए और एफटीसी का हवाला दिया था। तो जब एम्बे जीत गया कोर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर इसने दिए, कि क्यों मैं एम्बे को जो है ना सलूट करता हूं, क्योंकि उस कंपनी ने इस हाई कोर्ट तक जो है ना, फेडरल कोर्ट तक जाकर, और फाइनली जिस तरह बाकी बिजनेस है अमेरिका में, इंटरेस्ट रेट को जो कंट्रोल करता है, डाउ जोन्स और स्टॉक एक्सचेंज को जो कंट्रोल करता है, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वो होता है, उसके अंडर जो है ना डायरेक्ट सेलिंग आया। फिर अब जब एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन के अंडर जब आया, तो ये एकदम लीगल बिजनेस हो गया। फिर उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई स्कैम कंपनी आती है या कोई इसके बारे में बात करता है, स्कैम कंपनी के प्रोडक्ट जिसकी कीमत में भी $10 है और बेच रहे हैं उसको $500 में, या प्रोडक्ट को कोई बेनिफिट नहीं है, या पिरामिड है, या इस किस्म की चीजें ना, वो लोग जेल में जाएंगे। अब ये जेल से तो हर एक डरता है। तो ये कानून इतना सख्त बना यहां पर कि कल ही जो है ना, कल मैं, एक बंदा है उसका नाम है जॉर्डन एडलर। कितने लोगों ने नाम सुना है? देखिए, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में और ख़ास करके मैं जितने भी अभी लोग अभी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 14 लोग हैं, आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग किताब पढ़ें। मेरे लाइब्रेरी में उसकी किताब है, उसने एक ही किताब लिखी है। आप जाए चैट जीपीटी में लिखें बीच मनी। ये बीच समझते हैं ना, जो समुद्र के पास बीच में वो बंदा बैठा हुआ है, कुर्सी में से रखा हुआ है, और उसने ये किताब लिखी है। और इसको भी तकरीबन आई थिंक 40 साल तो हो गया। तो जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी में, तो ये बंदा भी आया था उसमें एज अ स्पीकर। मेरी मैं कहूँगा लकी था कि मुझे ये यूनिवर्सिटी मिला, और इस यूनिवर्सिटी से जितने भी टॉप के उस जमाने में टॉप के जो स्पीकर, पर्सनल डेवलपमेंट के स्पीकर्स और नेटवर्क मार्केटिंग के जो स्पीकर्स हैं ना, उनसे मेरी मुलाकात हुई वेबिनार के थ्रू, ऐसे आमने सामने नहीं। जिनमें से एक साहब जो हैं, छोटे से, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, ये चैलेंज टू सक्सीड, ये जिम रोन एक साहब हैं, जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट का गुरु रहा है। और अभी जो दो दुनिया का जो टॉप का जो गुरु है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में, डैरन हार्डी और एरिक वॉरी, ये दोनों जिम रोन के स्टूडेंट रहे हैं। आप समझ सकते हैं जब ये आया उस यूनिवर्सिटी में, तो उसके बोलने का अंदाज ही इतना पावरफुल। बहुत सारे स्पीकर वो जो है ना ऐसे लोगों को जो है ना खींच लेता है। तो जो भी उसकी किताबें थी, बिकॉज हर एक जो स्पीकर होता है ना, वो अपनी फिर एंड में अपनी किताब के बारे में बताता है, क्योंकि उसका 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है ना उस किताब में होता है। अभी मैं ये, आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ी होगी या नहीं, मैं बार बार वो देखता रहता हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, एक और किताब है। और किताब जो है ना आपका दिमाग खोलता है। ये 2 रोज पहले और ये किताब जो है नेपोलियन हिल, ये डेल कार्नेगी, जो दुनिया का वन ऑफ द टॉप मतलब एंटरप्रेन्योर, और उसका ये स्टूडेंट रहा है। तो कमिंग बैक अगेन के जॉर्डन एडलर की जो इंटरव्यू है ना, वो मैं इंशाल्लाह ताला मैप ऑफ फीड में मैं डाल दूंगा। वो इंटरव्यू को जरा गौर से आप लोग सुने। और वो भी हम लोगों के जैसे स्टार्ट किया, और करते करते हर एक देखिए ऑथर नहीं बनता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी के जो उसूल हैं वो बेसिकली सेम है। ये जो 6+7 आप कर लें,
के प्रोस्पेक्ट के सवाल, ऑब्जेक्शन, बिजनेस टूल जो मैंने अभी आप लोगों से बात की, और 3 में बात करूंगा सितंबर में, नेचुरल अप्रोच, नेचुरल प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप। और जो मैंने एरिक से जो सीखा है, थर्ड पार्टी में सबसे पावरफुल जो टूल है ना, वो है इवेंट्स। मतलब छोटे मोटे की मैं ये बात करूं, मैं बड़ी इवेंट्स की बात करूं जिसमें 1,000 लोग, 10,000 लोग जब आते हैं उस जो ना कॉन्फ्रेंस या लीडरशिप कैंप या रिकग्निशन नाइट, तो आप जो नहीं कर सकते हैं वो फंक्शन करता है, वो कॉन्फ्रेंस करता है। क्योंकि वहां पर स्टेज में एक लोग नहीं आते, उसमें 10 लोग आते हैं। और नाच गाने से और छलांग मार के जो है ना, ये भी एक स्कैम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कैम जो आप लोग अगर आगे लीडर बनना चाहेंगे तो प्लीज इस चीज को आप लोग अवॉइड करें, जो आप जरा सा आ गया है रिएक्शन पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से लोग जो है ना इंप्रेस नहीं होते। देखिए हमारा जो मुल्क है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी मुल्क है। अगर तो रिएक्शन 10 आदमी को पसंद है तो 1,000 आदमी को पसंद नहीं है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग फंक्शन से उठ के चले जाते हैं जब जी नाच गाना हो। तो तो आप लोग एज अ लीडर इस चीज को, जो चीज गलत है, देखिए देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, वो एक हदीस है, जब आपको कोई चीज पसंद नहीं है और गैर इस्लामी है तो हाथ से रोको या मुंह से बोलो। ये पहला। दूसरा है, और तीसरा, दिल में आप जरा सा कम से कम दिल से बुरा जानो। दिल से बुरा, हम सिर्फ दिल से बुरा जानते हैं। वी हैव टू स्टैंड अप। जो गलत है वो गलत है। अब इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत अभी जो है ना उम्मीदें हैं रिएक्शन पाकिस्तान से कि इंशाल्लाह ताला ये बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। और अब आप लोगों के हाथ में है, आप इसको किस तरह से लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग किताब पढ़ें और उससे कुछ सीखें। क्योंकि जितने भी लोग, और मैं जनरल बात, ये एक जनरल किताब है, ठीक है ना। अभी मेरे पास कुछ टाइम है तो मैं पढ़ रहा था, अब ये भी ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि अभी मैंने जो है आने वाले 4-5 महीने में मैंने अपनी तालीम करनी है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, क्या आपको क्या तालीम की ज़रूरत है? तालीम तो आपने करनी करनी है, को किस लेवल में आपको। मैंने अभी जो साइन किया है उसके साथ फॉर द कमिंग 4-5 मंथ्स, तो मैंने जो है ना वो सारी जो चीज़ें मुझे मिलेंगी उसी को मैं प्रैक्टिस करूँगा। इसीलिए सितंबर में मेरा जो वेबिनार होगा वो इस साल का पब्लिक वेबिनार लास्ट होगा। सितंबर के बाद फिर मैंने दिसंबर तक कोई वेबिनार नहीं देना, पब्लिक वेबिनार। जिस तरह दुबई वाले कहते हैं, मैंने दुबई वाले को भी कह दिया, घाना को भी मैंने कह दिया कि मैं जो है ना अब जनवरी में पाऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने एक तो 3 किताबें, सॉरी, जो ट्रांसलेट हो रही हैं उर्दू, बांग्ला और फ्रेंच, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा, जो 1.5-2 महीना इसी में लग जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आए तो आप लोगों को बस ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग की किताब आप पकड़ें। और अगर आप ये किताब ले सकती हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज इसी किताब पे, अच्छा वो मेरे बेडरूम में है, प्रो कोड जो लेटेस्ट किताब है। तो क्योंकि अभी जो तालीम जो मैंने लेनी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 50 साल में या पिछले इवन 10 साल में कैसे वो उसमें तब्दीलियां आई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और कुछ बेसिक जो चीजें हैं ना वो सेम है, लेकिन पैंडेमिक ने क्या किया, वो बेसिक चीज को जो है ना वो पीछे रख दिया था। क्योंकि अब हर एक वर्चुअल में आता था, जूम मीटिंग, तो ये मीटिंग तो वो मीटिंग, फिजिकली हम मिलते नहीं थे। अब हम दोबारा वापस आ गए हैं फिजिकल मीटिंग में। तो आप लोग एक चीज याद रखें कि आप लोगों ने सोशल मीडिया को तो हेल्प लेना है, लेकिन उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो। जो लोग आपको आमने सामने देखकर आपसे कन्विंस होते हैं, अभी मिसाल के तौर पे फरजाना का मैंने वो छोटा सा कोई वीडियो किसी ने मुझे, सईद साहब आ गए, सईद थानवी साहब, उन्होंने मुझे भेजा था। तो जब फरजाना अपने बारे में बता रही थी या डीएक्शन के बारे में बता रही थी, क्योंकि उस महफिल में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उस फिजिकली फरजाना थी। अब अगर कोई नए साहब हैं या साहिबा हैं तो जाहिर बात उनका जो टेस्टिमोनियल होगा वो 1 साल का होगा या 6 महीने का होगा या 2 साल का होगा। तो ये फिजिकली जब आप लोग मिलते हैं, दैट इज दफ्तर में या अपने घर में या किसी के घर में, इसमें जो है ना लोग ज़्यादा कन्विंस होते हैं। आप नहीं करती, वो लोग कन्विंस होते हैं आप की बातों से, आपके टेस्टिमोनियल से, या आप जो चीज़ सर्व करें घर में, अगर होम पार्टी वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, लर्निंग जो है ना वो बेसिक और ये रीढ़ की हड्डी है।
और नेटवर्क मार्केटिंग की किताब को पकड़े आप अभी। आप ये साल अगर एक काम कर सकते हैं, देखें किताब जो है $10 से लेकर $50 तक की किताब है। जाहिर बात है उस बंदे ने पूरा का पूरा अपना जो है ना जिंदगी डाल दी है। एक किताब मुझे भी याद आता है, वो भी नेटवर्कर है, द लीडरशिप रेवोल्यूशन। ये एक इंजीनियर है और ये साहब भी आए थे। तो बहुत 10 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, लीडरशिप अराउंड जनरल, और फिर उसने ज़रा सा मेंशन किया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। ओके, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। आई एम श्योर आप लोगों के सवाल होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आप लोग फिजिकली आए हैं, जो रिकॉर्डिंग में तो वो लोग सवाल नहीं कर सकते, आप लोग अब सवाल करें, जैसे हाथ रेस करें या अनम्यूट करें और सवाल करें। एनी क्वेश्चन? Assalamualaikum, Fatim bhai. वालेकुम सलाम। Fatim bhai, this was an eye-opening session as always. तालीम के मकसद से तो किसी को इनकार नहीं है, और जब इकरा का लफ्ज़ बता दिया गया तो फिर तालीम की तो अहमियत वहीं से शुरू हो जाती। तो मैं समझती हूँ कि हमें कुछ ऐसी आप टिप्स बता दें कि रेगुलर बेसिस पे अगर हमें अपना एक कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बनाना हो तो कितना वक्त हमें नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को सीखने में लगेगा टू अचीव सम सक्सेस। एक अंदाजे के मुताबिक आपका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और लोग भी जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनका भी एज ए नेटवर्कर एक्सपीरियंस है, लेकिन एज ए कोच आपकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो किस हद तक आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हेल्प करती हैं? उसके लिए कोई और यानी कि कोई एक्टिव होनी चाहिए जिसको आप याद रख सकें उन तमाम बातों को? पढ़ना और फिर उसको याद रखना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हम रीडिंग कर लेते हैं लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसे रिपीटेशन नहीं मिलता तो वो गायब हो जाती और फिर वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाती। देखिए, आप जो भी पढ़ रही हो ना अस्मा, वो उसमें कुछ सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं। हम्म, मतलब किताब में बहुत सारी चीजें होती हम्म, हैं और जिससे आप कनेक्ट होती हो। हम्म, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, आप कोई भी किताब पढ़े ना, तो एक मैं मैप ऑफ फ्रीडम ही की मैं बात करता हूँ। मैंने कहा पहली मतलब किताब जो है ना आप एक फास्ट रीड करें, हम्म, फास्ट रीड बिल्कुल। और दूसरी मरतबा जब पढ़े ना, उसमें आप डीएक्शन भी डालें हर पेज में, क्योंकि डीएक्शन का नाम तो नहीं है, जनरल है, जेनरिक किताब है, बट इट इज ऑल अराउंड डीएक्शन। और हम्म, आप अपने को डालें उसमें। अपने ए- को जैसा ए- डालना मुश्किल होता है, तो आपने उस सिनेरियो में आपने अपने को डालना है। रिफॉर्म और करना। फिर आपके अंदर से जो है ना वो सवाल आएगा कि अच्छा ये तो मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, या एक डाउट आता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कंटिन्यूसली देखें। ये हमारा जो ब्रेन है ना, हम्म, वो कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। ऑफ कोर्स। ये हर चीज़ में ऐसा है, तो ब्रेन भी ऐसा ही है हम्म, कि आपको कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर आपने लगाना है। मैं बेगम को जो है ना कभी लेके जाता हूँ, कोई शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए वो जाती है, तो मैं उसको कहता हूँ तुम चले जाओ भाई, मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा। और मेरे पास गाड़ी में एक किताब तो डेफिनेटली होती है। और ये जो है ना पूरा इसका जो एल्बम है ना, इट इज ऑलमोस्ट 10-12 घंटे का ये। और ये मैं उस जमाने में, कुछ जमाने में 2004-05 में $70 का खरीदा था ये आपको मैं दिखाऊं। ये ऑडियो, इमेजिन करिए, ऑडियो ऑडियो सीडी है ये। उस जमाने में ऑडियो सीडी होता था। और मुझे खुशी मिली जब एरिक ने कहा, जो अभी मेरे उस्ताद हैं, कि मैंने जो इससे सीखा है, सिर्फ ये 4 हैं इसके अंदर। एक एक सीडी जो है उसके अंदर खजाना भरा हुआ है। और ये पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में मैं पढ़ के सुनाता हूं। Challenge yourself to success, enrich your life, increase your lifestyle, gain confidence in your business. Now, the fundamental tools for prosperity and success from the most uniquely profound communicator of all time, Jim Rohn. Or now you can enjoy Jim's philosophy for successful living that has been shared with millions around the world. His simple, common sense messages will teach you the 5 major pieces of life puzzle, the powerful personal development and the winning strategies for the physical, emotional, and mental battles ahead. All the insight necessary for turning your personal and professional life around. तो जब तक आप सीखोगे नहीं, आप सिखाओगे क्या?
यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। तो असमा मैं ये करता हूँ ना, कुछ जो बहुत अच्छी किताबें जो होती हैं ना, मेरे जो लाइब्रेरी है, इंशाल्लाह ताला भी मैं कल परसों में मैं एक और वीडियो भी लेटेस्ट जो बनाऊंगा वो पर्सनल डेवलपमेंट में बनाऊंगा। तो डिफरेंट जो है ना शेल्फ्स है ना, तो वो जो जो इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं ना, जो मैं समझता हूँ कि मुझे दोबारा पढ़नी है, मैंने पढ़ लिया, तो उसको जो है ना एक एक उसको ब्लॉक में आई रीड एंड री रीड दैट, बिकॉज दिमाग है, हर चीज़ को तो याद नहीं रख सकते। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग की जो किताबें हैं ना, वो आम मिलती भी नहीं है, आपको अमेजोन से लेना पड़ेगा, वो आपको आम जो है ना बुक स्टोर में है नहीं ये सारी किताबें। जिसमें ये बीच मनी एक है, विच इज अ वेरी गुड बुक, एक्सीलेंट बुक, विच इज अराउंड, और कैन यू इमेजिन ये बंदा जो है मिलियनेयर बना। और ऑफ कोर्स ये जो इंटरव्यू है, एक सेकंड मैं जरा मुझे कोहोस्ट का वो करें, जरा आप कर सकती हो? हाँ जी मैं करता हूँ, एक सेकंड, 1 मिनट। अल्लाह अकबर, होम जी डन। डन, ओके। जी। तो मैं आपको शेयर करा दूँ, कल जो है मैं ओके मैं जो है शेयर करता हूँ जैसे आप कल, और मैं मज़ेदार बात हो, मैं कर क्या रहा था कल, मेरा गार्डनिंग का था दिन। गार्डनिंग में आपको पता ही है बहुत टाइम लग जाता है, घंटा मिनिमम लगता है, 1 नाइट गोज टू 2 आवर्स। जब आप गार्डनिंग करते हैं, एक एंजॉय भी करते हैं गार्डन में, साथ मैंने कान में ये टूटी लगाई हुई थी, एंड मैंने इसका इंटरव्यू पूरा जो है ना जॉर्डन एडलर का, ये अभी लेटेस्ट इंटरव्यू हुई है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वील हैव दिस फॉर जस्ट 5 मिनट्स, इट कैन नॉट गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये बंदा है, और ये मैं आपको बता दूं ये किस कंपनी के साथ है। मेट्रो से आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा कि ये बंदा है कौन, राइट? राइट। ये बंदा का जो प्रोडक्ट है ना, वो एक कार्ड है। ओके। कार्ड इमेजिन करें। और मैं यहाँ पर 2 मीटिंग में इनके मीटिंग में भी गया था वैंकूवर में, क्योंकि आप सीखते हो ऐसे मीटिंग में जाकर। चलिए मैं ये प्ले करता हूँ। So and then back then, if you didn't have a physical business address that was a real business, because people would drive by, if you had an address that wasn't a real address, it's a different world back then. People would drive by, they were sure you were. बैक देन की जो बात कर रहा है ये 1980 की बात कर रहा है, ओके। 1990 की बात कर रहा है, ठीक है ना, जब डीएक्सएन पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त की बात कर रही है। Scam. No, you had to have a storefront if you wanted to be legit. Today, people don't put addresses on their cards because it doesn't matter. Right. It's actually feather in your cap to have a home-based business. So, so I started dabbling in network marketing. I really was dabbling. I'd try it. I wouldn't have any success. डैबलिंग का मतलब है टामक टोइयां कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, और मैं जो And I would quit. And I did that over and over and over again for 10 years, 11 different companies, one at a time for the most part. I would join the company, talk to 2 or 3 or 4 people, maybe invite somebody to a business presentation. They wouldn't show up, or they'd cancel on me, or they'd show up and then they weren't interested. And I didn't have really any money to support the business at all. I was racking up my credit cards. I had credit cards, maxed out all my credit cards. Eventually there were 22 credit cards that were maxed out, 36,000 in debt on network marketing products and events and audio tapes and books, all on these credit cards. And I had nothing to show for it. And you recruited 0 people. 0 people in 10 years, 11 companies. 11 companies, Not 10 one. years. In fact, I didn't recruited even 0 I people. didn't even have any customers. Wow. No. Most of the companies cost me between $200 and $300 to get involved. Some people would say that's enough of a test to be able to say it's I'm not very for good you. at this. Right. But my vision for, so here's the thing, I proved that I was not good at it. But I knew, because I'd been around it and I'd read the books, I knew there were people out there that could do it big. I just need to recruit one of them. So I kept looking for the one that's going to do it. Somebody, right? And what happened was, I don't even know that you don't know this part of the story. I've never told you this part of the story. It's kind of funny. So I was at a bowling alley, and there was a guy, or no, even before that, my cousin came to me and said, I'm involved in a network marketing company called Excel. And I had no interest at all. It was a telecom network marketing company. I wasn't interested in that one. I was doing something else at the time. But again, I'd never made any money. And many months later, probably 18 months later, I'm at a bowling alley. And there's a guy handing out brochures at the bowling alley. And one of them was, I got it. इसकी कंपनी का नाम है सेंड आउट कार्ड्स। जो बर्थडे कार्ड होता है या वो होता है, उसमें ये लोग इतनी ज़बरदस्त तरीके से
अच्छा, इफ़त ने ऑडियो का वो भी भेज दिया है। ये उसकी वो किताब है, बीच मनी, ये किताब है। और वो छोटी सी किताब है, ज़्यादा पेजेस भी नहीं, हार्डली हाउ मेनी पेजेस, इट्स 100 पेजेस। इमेजिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन आवर। इस बंदे ने जिस किताब से उसको मोटिवेशन मिली वो ये किताब है। इंशाल्लाह ताला ये भी, इस किताब के बारे में मैं एक रिव्यू दूंगा। इसका नाम है द 45 सेकंड प्रेजेंटेशन दैट विल चेंज योर लाइफ बाय डॉन फेले। ये साहब जो हैं, ये किताब और इसकी किताब तो 100 पेजेस भी नहीं है, दिस इज अबाउट 80 पेजेस। और इसने बड़े खूबसूरत तरीके से ना एग्जाम्पल्स दिए हैं ये डॉन फेले ने, तो उससे ये मोटिवेट होकर नेटवर्क मार्केटिंग में सीरियसली ये घुसा। देखिए, आपको नहीं पता है कौन सी किताब, कौन से लोग, कौन सा इवेंट आपको जो है ना आपका दिमाग खोल देगा। तो आपका जो काम है, लाइक अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होता है ना, जो किचन में होता है या बाथरूम में होता है, जो चूसता है पानी को, इस तरह से आपने जो है ना नॉलेज को जो है ना गेन करना है। क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं गेन करेंगे, देखें, दो चीज़ें हर एक की ज़रूरत है, सेहत और पैसा, और दोनों हम दे रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं और अगला बंदा समझ नहीं रहा है, तो इसके मतलब क्या है? आप चाइनीज़ में बातें कर रही हो, उर्दू में नहीं कर रही हो, पंजाबी में नहीं कर रही हो, जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप कर ही नहीं रही हो। तो हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखना है ना इन सारी किताबों से, या जब बाकी जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, आपने बोलना सीखना है। आपको बोलना ही नहीं आता है, आपके पास ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है और वो जो है ना आपको ना कर रहा है। मैंने क्या कहा था परसों के जो वेबिनार में? मैंने कहा ज़ीरो रिजेक्शन कन्वर्सेशन। अभी वो साहब नहीं नज़र आ रहे मुझे, तो एक साहब मुझे कह रहे थे कि ये जो है ना कोई दुबई में एक मोहतरमा है, वो जो है ना हमारा क्या प्रोग्राम है। अच्छा, उसने पूरा इंट्रोड्यूस कराया भी नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये भी 4 रोज़ पुरानी बात कर रहा हूँ। वो मोहतरमा रशिया की, रूस की है। तो 15 मिनट के बाद जो है ना मुझे पता लग गया कि दैट शी, उसका बॉडी लैंग्वेज, अब मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ पूरा, मैंने स्क्रीन में भी देखा ना, आप गैलरी व्यू में होते हैं तो पूरा होता है, लेकिन अगर स्पीकर व्यू होता है तो पूरा वो शख्स नजर आता है आपको। तो आई रियली राइट नोट्स, मैंने नोट्स है, उसको पता लग गया कि मैंने कहा आई एम राइटिंग नोट्स बिकॉज मे बी आई एम टॉकिंग टू अबाउट 10 पीपल, समटाइम 5 पीपल, सो आफ्टर 1 वीक आई वुड नो हु इज कैथरीन। तो मैं जब देखा ना, तो उसी वक्त जो है ना नज़र आ गया कि दैट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो इंस्टेड ऑफ मी टॉकिंग मोर, और मैं काम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ओके, व्हाट आई विल डू इज आई शेयर सम वीडियोस, यू टेक अ लुक एंड देन यू गेट बैक टू मी। और मैंने कहा कि आई हैव टू गो फॉर अनदर कॉल। मैंने जो है ना पोलाइटली वो कॉल को एंड कर दिया इन जस्ट अबाउट 20 मिनट्स, और ये कॉल जानी थी कम से कम 45 मिनट। और मैंने जो साहब लेकर आए थे उनको मैंने कह दिया शी इज़ नॉट गोइंग टू जॉइन। और कैसे सर, वो तो बहुत इंटरेस्टेड थी एंड ऑल दैट। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा। अभी दिस हैपन्स विद टाइम, आप इतने लोगों से बात करेंगे ना तो फिर ही पता लगेगा। इट्स नॉट दी ऑब्जेक्शन। उसने कोई सवाल नहीं किया क्या ये पिरामिड है, क्या मैंने सेलिंग करनी है। मैं उसको ये बता रहा हूँ, यू आर अ कोच, आई एम अ कोच, एंड आवर जॉब इज नॉट टू सेल, our job is to basically educate. You are an educator and I'm an educator. I've not sold a single product. That's my weak area of my business, or I just cannot sell. But I've got over 1 million people in my team, and that's a strength. Why? Because I just showed the benefit and the value of this program. तो आप लोगों ने जो है ना, देखिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त कंपनी दिया है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो मिलियंस में लोगों को हेल्प कर रहा है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अभी शेबी जो है, अभी वो सांटा की बातें कर रहा है, जो एक इथोपियन है, जो छोटा सा दफ्तर खोला है डेरा में, क्राउन डायमंड, यस, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड बन गया। मेरी मुलाकात हुई थी, मेरे साथ ये बैठा था, कोई तकरीबन घंटा 1.5 घंटा बैठा था, वो लापिटा रिजॉर्ट में जो हम लोग गए थे, जो लीडरशिप कैंप हुआ था।
वी सैट डाउन, वो कह रहे, ये पूछ रहा था कि सर मैं इसको बहुत सीरियसली करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट, और अभी तक जो है ना मैं फंसा हुआ हूँ। तो दैट 1 आवर ऑफ टॉक उसने फिर डिसाइड किया कि मैंने अपना दफ्तर बनाना। अब ये जो बंदा है, ही इज नाउ माशाल्लाह, आई थिंक ही इज द टॉप अर्नर ऑफ इथियोपिया। अब पाकिस्तानी कहते हो इथियोपिया ये तो काफ़ी गरीब मुल्क है, आप सोच नहीं सकते। आप लोग बहुत अमीर लोग हैं पाकिस्तान और इंडिया में जो बैठे हुए हैं। इंडिया के लोग हैं, सुनील मुझे नज़र आ रहे हैं, केरला के, आप लोग बहुत अमीर लोग हैं। जब मैं गया था $1 पर डे उनका तनख्वाह होता था, $25-30 मिलता था उनको। वो लोग तो नहीं कहने कि तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। अभी घाना खुला है, इसी महीने के एंड में 29 तारीख को ज़ैम्बिया खुल रहा है। जो लोग कराची से हैं तो एक साहब होते थे मुर्तज़ा भाई, मुर्तज़ा, कितने लोग जानते हैं मुर्तज़ा को? कोई जानता है या नहीं? बहुत एक्टिव साहब होते थे, जी, जी। महनाज की टीम में होता था। जी जी, मैंने आज किरण के जी। पता आपको वो कहाँ है? नहीं। ज़ैम्बिया में है। वाह। जी सर, ज़ैम्बिया में हाँ। तो आप ये देखें, वो बंदा वहां जाकर अब जो है ना वो एक्टिवेट हुआ है, बोलेगा मैं दफ्तर भी जा रहा हूं, अभी तक दफ्तर खुला नहीं है। तो आपके पास तो गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है। आप किस तरह से आगे, वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट है, वही कॉम्पनसेशन प्लान है, तो कैसे ये सांता साहब जो इथियोपिया के जो हैं, ये आपका क्राउन डायमंड, और अभी ये क्राउन एम्बेसडर बन जाएगा, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ इथियोपिया। देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन जवाब देगा अस्मा के अलावा, चलो मैं मुजाहिद से पूछता हूं। अफ्रीका के जो लोग हैं ना, उनके अंदर कौन सी खूबियां हैं? 3-4 बता दो। गनी साहब, जो मुझे छोटी सी इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में, नंबर 1 ये है कि जॉब से ज्यादा वो बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 2, मेरी छोटी सी मालूमात के मुताबिक फिर वो नेटवर्क बिजनेस को हमसे ज्यादा जानते हैं। फिर वहां पे भी ऐसा बहुत सारा स्कैम्स किस्म की कंपनियां आकर वो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन वो इसको देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ये 2 चीजें। दूसरी चीज फिर काफी मेहनत पसंद हैं या सीखने के हवाले से। जो मैंने भी छोटा मोटा जो इन लोगों के ऊपर काम किया है, सो दे आर वेरी यानी हंग्री फॉर लर्निंग, स्पेशली बिजनेस टाइप ऑफ चीज के लिए। यानी कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो एटलीस्ट वो आपके साथ बैठ के आपके प्लान और आइडिया को एटलीस्ट सुनेंगे, यानी कि आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि भाई मुझे ये नहीं करना या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। नहीं, वो देखेंगे इस चीज को, क्योंकि उनको सीखने को मिल जाता है। जी गनी साहब, बिल्कुल, तुमने जो बात कही, हंग्री टू लर्न, भूखे हैं ये लोग। आप मतलब स्केल 1 to 10 माने कि बिल्कुल वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए तैयार है, सीखने के लिए। मौरितानिया ले ले, अभी मैं मौरितानिया की काफी गुन गा रहा हूं पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि मैंने जाके देखा है उन लोगों को। 500 लोग लेकर आया एक आदमी, 1000 में 50% इस बंदे ने, एक इब्राहिम नाम है उसका, तो काफी अरसे से काम कर रहा था ना। तो एक तो इनका हंग्री फॉर लर्निंग है, और गुर्बत बहुत है, बहुत गुर्बत है। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कितनी गुर्बत है। और ये लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, ज्यादातर ये लोग आते थे दुबई, और दुबई से जो क्या उर्दू का लफ्ज है, क्या कहते हैं उसको, खेपिया, वो सामान लेकर यहां से वो जाते हैं और वहां जाके बेचते हैं, और वहां से कोई उनकी जड़ी बूटी या कोई चीज वो लेकर यहाँ आकर दुबई में बेचते हैं। बट मेन उनका काम ये है सामान यहां से लेके जाना और वहां जाकर बेचना, सोमालिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, घाना एंड ऑल दिस प्लेसेस। तो उनको बिजनेस पता है, उनकी औरतों को भी बिजनेस पता है। तो और चीजें जो हम इंडिया पाकिस्तान में भी है, वो ये है, जड़ी बूटियों पे यकीन करते हैं, जड़ी बूटियों में यकीन। अब देखिए ना, कनाडा कितने ही आगे जाए, उनके लेवल में नहीं जा सकते, बिकॉज हम लोग यहां पर जो गोरे लोग हैं ना, इस पे यकीन नहीं करते हैं। कल मैं ऐसी, जब कुछ टाइम मिलता है तो मैं मूवी देखता हूं,
ज़रा सा अपने को रिलैक्स करने के लिए, तो वो अच्छी वाली मूवी जिसमें कोई, तो ये नेटफ्लिक्स का नंबर 1 मूवी था। तो मैंने कहा अगर नंबर 1 मूवी है तो कोई तो अच्छी बात तो होगी इसमें। तो जब मैंने देखा, जो भी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उसमें अफ्रीकन एक मोहतरमा थी, तो उसके स्टूडेंट को एक वो देती है, एक छोटी सी बॉटल देती है उसके, वो कहती है कि ये बिल्कुल बहुत ही जो है ना केयरफुली और एकदम लास्ट मोमेंट में लोगों को देना जब वो मरने लगे। तो उसके अंदर क्या था, वो कोई जड़ी बूटी थी। वो मूवी का नाम है क्रेवन और हंटर, अभी लेटेस्ट ही मूवी आई है। एनीवे, कमिंग टू बिलीविंग इन द हर्ब्स, और वो पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा तो आप लोग भी कमाना चाहते हैं, लेकिन मसला एक है, एक नहीं 2 मसला है। पता है क्या मसला है? कोई मुझे जवाब देगा इस मसले का? जो हमारे खास करके बड़े सगीर का जो है ना, क्योंकि मैं वहीं से हूं तो मुझे पता है आपका माइंडसेट। फिदा बताओगे क्या क्या 2 बड़ा मसला है हमारे लोगों में, जो हम आगे नहीं जा पा रहे? क्या सर मसला नंबर यहाँ 1? पे यहाँ पे सर एक तो मेन चीज जो है ना, वो लोगों को मतलब बिलीव ही नहीं है, अपने ऊपर ही बिलीव ही नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर पे ये है कि लोग टाइम नहीं देते। मतलब टाइम भी होता है, वो अपने टाइम को गैर जरूरी एक्टिविटीज में यूटिलाइज करके तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वेस्ट करने के लिए उनके पास बहुत टाइम होता है, गाना सुनना, नाच गाना, ये चीजें, घूमना फिरना, गैर जरूरी ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर उनको बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बोले तो वो मतलब टाइम की प्रॉब्लम बनाते हैं या पैसे की प्रॉब्लम बनाते हैं। इवन पैसा होता है तो वो ये सारी दूसरी एक्टिविटीज भी करते हैं, पैसा जाया करते हैं। और राइट चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं मशरूम की, तो वो इसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। ठीक ठीक, चलो ये 2 पॉइंट हो गया। इफ़त 2 पॉइंट देना चाहती है। सर एक पॉइंट समझ आ रहा है कि हम में से कोई जो है वो बाहर निकल के काम नहीं करना चाहता कि छोटा काम हम लोगों में जाके अगर बेचेंगे तो फिर हेजिटेट होता। नहीं नहीं, ये भी है। चलो, ये जो मेरे दिमाग में है ना, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सर बताएं। क्विक रिच, रातों रात हम बस सुबह उठे, आज ज्वाइन किए, सुबह उठे हमारे पास पैसा होना चाहिए। सर शेख चिल्ली, इसको कहते हैं क्विक रिच, रातों रात हम अमीर हो जाएं। शेख ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारा, ये भी एक तरह का मिथ है और लाई है। देखो इसका घर देखो, इसका ये गाड़ी देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसको ये नहीं देख रहा है वो बंदा 10 साल लगाया है, 15 साल लगाया है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना? तो एक तो ये है क्विक रिच माइंडसेट, विच इज अ रॉन्ग माइंडसेट। और जो चीज मुझे अभी देखिए, मैं कितने मुल्क में गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 50, कितने, मोर देन 50। अबाउट 55, और 2027 में मैं 60 क्रॉस कर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस साल जाना था, लेकिन मैंने कहा कि बहुत सर्दी के मौसम में मैं नहीं जाऊंगा, मंगोलिया जाऊंगा इंशाल्लाह ताला, एंड देन ऑफ कोर्स घाना एंड ज़ाम्बिया एंड ऑल दिस प्लेसेस। तो अभी मैंने सारा का सारा 27 में मैंने वो कर दिया। अब मैं ये जो कह रहा हूँ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इतने सारे मुल्क में जाते हैं, जब मुझसे कोई पूछता है कि कौन सा मुल्क आपका फेवरेट है और क्यों, मेरा फेवरेट मुल्क है इथोपिया। इथोपिया, वो क्यों? उनकी ज़बान अम्हारिक, बहुत ही, ज़बान तो मैं समझता ही नहीं हूँ, जो उनकी लैंग्वेज है बहुत स्वीट लैंग्वेज है। उससे भी जो बढ़कर है ना, ये कितने ही अमीर लोग हों, क्योंकि जो रन कर रहे हैं, शी इज़ अ वेरी रिच लेडी, शी इज़ अ मिलियनेयर, जिन्होंने DXN को 2005 या 4 में लेकर आई थी, और मुझे फॉरेन ही उन्होंने बुलाया था 2005 में। पहली मरतबा मैं अफ्रीका गया था। हम्बल लोग हैं, डाउन टू अर्थ। इसी मुल्क से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवरेट सहाबा में से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इसी मुल्क से थे। कोई तो बात थी, होगी ना। और बड़े अच्छे मुसलमान, बहुत अच्छे इंसान, इतनी उनके अंदर ह्यूमिलिटी है। आई वॉज लकी, मे बी आई मेट ऑल 100%, जो भी मेरे सामने आए उनसे बात किया, हाँ वो बहुत अमीर हो या दरमियाना हो या गरीब हो, हर के अंदर बहुत इंकिसारी और डाउन टू अर्थ लोग। देखिए, मुल्क जो बनता है ना, वो बिल्डिंग से और गाड़ियों से नहीं बनता है, लोगों से बनता है। तो हमें एक अच्छा इंसान हो, पर्सनल डेवलपमेंट का जो है ना, हमारा देखिए, जो हमारे जो हीरो हैं ना, वो कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरे भी जो लोग हैं ना, देखिए, हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी जो है ना, वो हर एक को पसंद है। आप अपने बारे में जो है ना, किसी के बारे में किसी के पूछना कि, तो वो
क्या किस तरह से आपको डिफाइन कर रहा है। गाड़ी, बंगला, घर, ये सारा कुछ नहीं, बैंक बैलेंस ही कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज द ह्यूमिलिटी। और ये अल्लाह को भी पसंद है, बंदे को भी पसंद है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ना, अब मैं वापस आता हूँ, उससे ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैंने निकलना थोड़ी देर के बाद, बाहर जाना है। ये पॉइंट्स रखते हुए आप जो है ना अफ्रीका के मार्केट को में जाकर एक्सपेंड करें। आपको लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि वो भूखे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। और आपको एक शख्स या एक औरत आपको मिल जाए वो काफ़ी है। काफ़ी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक लाइन तो आपका डेवलप होगा फॉर श्योर, लेकिन आपको साल लगाना पड़ेगा उसके साथ, जब आपको नज़र आ जाएगा उनके अंदर भूख और तड़प है। तो लास्ट लेता हूँ, हुमा आपने भी हाथ खड़ा किया था या गलती से वो हाथ खड़ा हो गया? सर मैंने हाथ खड़ा किया था, लेकिन फिर आप जब बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ चीजें मुझे समझ आई, जो कि एक्चुअली अभी इतना ही काफी है। इतना तो अभी मेरा सफर नहीं, लेकिन सीखने का बस मुझे यही था कि जो चीजें मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है, जो मेरे लिए स्पेशली यहाँ तक जहां तक मैं भी पहुंची हूँ, तो उसके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं, क्योंकि देखिए, अब इतना कुछ मुझे देखिए जी, मिल रहा है। सारा कुछ में आप सारा को एक तरफ कर दे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों से बात करें डेली। बिल्कुल सर, आप वो बात करते करते जो है ना आप सीखेंगी। ठीक होगा बात करें, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन, दैट्स इट। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सर। ये आप सीखें, सारी सर- किताबें पढ़ें, आप ये सारी किताबें आप पढ़ें, सारी पढ़ने के बाद आपको कोई चीज़ नजर आ रहा है ना, वो वाली जो चीज़ है, इस बंदे ने पता है कि कैसे इसने इसका जो चैप्टर है आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जी, आ रहा कहते हैं नैपकिन प्रेजेंटेशन। मैं जो 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 आपको टिश्यू पेपर मिलता है ना वो रेस्टोरेंट में, उसके ऊपर ये प्रेजेंटेशन देता है। और अभी मैं जा रहा हूँ, अभी किसी ने मुझे दावत दी है, वो सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप आ जाए मेरे, तो बोल के नहीं मैं घर नहीं आऊँगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू अ रेस्टोरेंट। तो अभी मैं लंच में जा रहा हूँ, तो वो मेरा वो बिजनेस लंच है बेसिकली। उस आदमी को पता है ये बिजनेस लंच जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने जगह भी ऐसा चुना है जो इतना क्राउडेड नहीं है। Basically, how we तो learn. आप लोगों का मेन काम जो है लोगों तक पहुंचना और उनसे बात करना, उनका प्रॉब्लम मालूम करना। प्रॉब्लम तो है, और पाकिस्तान में तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जो दो मेन प्रॉब्लम है वो उस शख्स या उस मुहतरमा का जो है ना 70% प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। सेहत और पैसा, पैसा के साथ जुड़ा हुआ जो है 10 और प्रॉब्लम है। हम्म, तो पैसे के लिए सारे लोग जो भी करते हैं, मे बी लीगल और इलीगल, बड़ी बड़ी जो मुल्क है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, पैसा को उन्होंने खुदा बना लिया, पैसा को खुदा बना लिया। और जब वो बनाएगा तो फिर वो उनका क्या होना है वो आपको नजर आ रहा है। नहीं। तो आप लोग इसको सीरियसली लें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत जो है ना एक में भी चुना है आपको। हर एक नहीं करेगा ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, हर एक नहीं कर सकता, टफ है ये। मुझे किसी ने पूछा था कि कौन सी एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे में रिजिलियंस, आपको जो है ना डट कर खड़ा होना है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके इंटरनली दिमाग के अंदर से प्रॉब्लम आएंगे, आपके अराउंड फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएंगे, दोस्तों की तरफ से, आपकी टीम से आएंगे, आपकी मैनेजमेंट से आएगी। प्रॉब्लम्स तो हर तरफ हैं। अब आपने डट कर खड़ा होना है और उसको ओवरकम करना है, फिर आप जीतेंगे। दिस इज द रीजन वाई इट्स अ वेरी टफ बिजनेस। बहुत टफ है हमारा बिजनेस। और वो जब इसको उबूर कर जाता है, ये सारे जितने भी चैलेंजेस से निकल आता है, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे। अभी हम कितने और पेजेस रह गए हैं आता? बहुत कम रह गए सर, बहुत कम रह गए, 15-20 सर। मिनट हार्डली 4 to 5 जो हैं वो रह गए हैं हमारे चैप्टर्स। सर दो सेशन में खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। 2 सेशन में 3 के अंदर मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे। ओके, क्योंकि सितंबर के बाद फिर मैं जो है ना वेबिनार, क्योंकि मुझे अभी फोकस करना है मेरी अपनी लर्निंग पे, क्योंकि अब लर्निंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, नई जो चीज़ें हैं ना वो सारा कुछ सीखना। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आई वुड लव टू सी ऑल कि आप लोग इसको ज्वाइन करें। $499 है, लेकिन आपको ये पैसा जो है ना आप जो इन्वेस्ट करेंगे इस लर्निंग में, ये आपको जो है ना इन लेस देन 1 ईयर आपको ये पैसा मिल जाएगा। ये मैं आपको लिखकर बताता हूँ।
अगर आप उस सारो जो चीज़ आप सीखेंगी ना उसको आप इस्तेमाल करेंगे अगर। और इस महीना इस साल तो हमारा लीडरशिप कैंप हो भी नहीं रहा, तो मेरा पूरा इरादा था लास वेगस जाने का। इसका जो है पिछले आई थिंक 12 या 15 साल से ये लास वेगस में ये कन्वेंशन करता है। पहला साल इसका तकरीबन 10,000 लोग थे, वो करते करते 50,000 में चले गया। तो मैंने कहा कि 50,000 लोग कैसे वो करता होगा, मतलब पूरा का पूरा एक ऑडिटोरियम या स्टेडियम के अंदर वो करता है। लेकिन इस साल जो है ना वो ये नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन कर रहा है। तो आप लोगों की अयाशी हो गई, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई में जो लोग बैठे हुए हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इसके मतलब है वो टिकट, फिर उसका होटल का चार्जेस, फिर वो कन्वेंशन के अंदर जाने का वो $500 से $1,000 लेता है। अब आपको 499 में आपको सब कुछ घर बैठे, और आपको 3 रोज में ये भी बता दूं, आपको रात को उठना, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 9 बजे से लेकर आई थिंक 5 बजे तक चलेगा, फिर हाफ एन आवर पता नहीं कब लंच ब्रेक होगा। तो फिर उसी दौरान में आपने तहज्जुद भी पढ़नी बात है। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। ओके, टेक केयर। Thank you, हमने कर ली। थैंक यू फातिमा जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।